Narayan. In this video, I have taken up one single slok from Manusmriti. I will describe that slok and the relevance and importance and applicability of the slok in today's world. The slok is this: Adharmene dhate tavar tato bhadrani pashyati tatah sapatnan jayati samulastu vinashyati. For a while, one prospers by the means of adharma. For a while, he enjoys and experiences good things in life. For a while, he even conquers all his enemies. But after all, he is destroyed, root and branch. I will put emphasis on the word root here. Root is equated with the lineage of man. And I will cite two examples. One is Valmiki Rama and the other is Mahabharata. Sri Rama wages war against Dasanan, Ravan. He also gives him a last chance that if you restore Sita to me, I will leave you unhurt and I will go back to Ayodhya. So he gave him a last chance, but Ravan did not listen and he waged war. He fought the war, but he was destroyed to his root. None of the sons of Ravan survived the Lanka war. So the lineage of Ravan was wiped out from the face of the earth. We take Duryodhan in Mahabharata. He fought Pandavas and Sri Krishna, who altogether represented Dharma. Now, Duryodhan fought with Dharma, and Duryodhan was also destroyed to his root. None of the sons of Duryodhan survived the Kurukshetra war. So, his lineage was wiped out from this earth itself. So, this shlok was applicable on Ravan. This shlok was applicable on Duryodhan as well. If we take the two kings and the prosperity of these two kings, we take Ravan, for example. The prosperity of Ravan is mentioned in Valmiki Ramayana, in the Uttarkands, and how he forcefully kidnapped a lot of maiden daughters of Gandharva, Vidyadhara, many Brahmanas, gods, and kings, and he brought them to Lanka and married them forcefully. Now, many of them also voluntarily chose Ravan as their husband because he was very popular among women. He was valorous, so he was very popular, and some of them also were forcefully kidnapped, which they did not want to marry Ravan, but he wanted them, and so he brought them to Lanka, solemnized their marriage, and he enjoyed all of them for many years. He also expanded his dominion. He also defeated the four Lokpals. He even defeated Indra and brought him captive to Lanka and then was released. So he became the suzerain lord of the ogres. He became the suzerain lord even of the three worlds, you could say. So he enjoyed and experienced good things in life, the sense delights. He expanded his enemies. He destroyed his enemies and he conquered his enemies, expanded his dominion. And in the end, he was destroyed to his root. None of the sons of Ravan survived. So, this was the result of someone amassing their objects of desire by the means of adharma. Now, if you take Duryodhan, Duryodhan was also a notorious man. He knew dharma, but he could not walk the path of dharma. He himself admitted in Mahabharata that I know that dharma is very good and it is very powerful, but I am not able to walk the path of dharma. This is my nature. You have to accept it. So at least he was honest to himself and to others as well. So he outspokenly addressed everyone that I am unable to follow the path of dharma. So please spare me the lessons of dharma. So he fought with Pandavas, but he also was destroyed to his root. Now, while the Pandavas were suffering in the exile for 13 years, Duryodhan was happy. He enjoyed Hastinapur, he enjoyed Indraprastha. He even expanded his dominions because Karna also won a lot of smaller territories. And during those 13 years, he expanded his dominion. A lot of other smaller territories started paying taxes to Duryodhan. So he was quite affluent by that time, by those 13 years. And he was contemplating that there could be a war, so I have to expand my army. So he enjoyed all the good things. He even conquered his enemies. But in the end, his entire lineage was destroyed. None of the sons of Duryodhan survived. Had they survived, some of them would have been alive even now. His lineage would have been alive by now. So we have to think prudently about what means do we employ to acquire our objects. Whatever our object is, if you have certain desires, are you willing to sacrifice your own self and employ dharma as your means to acquire those objects, or you are willing to compromise on morality, on virtue, and utilize adharma as a means of acquiring those objects? But if you if you utilize adharma as a means,
and you also acquire the objects of your desire, you enjoy them. But remember, these two stories and many other stories tell us that in the end, adharma is destroyed, and this is the justice of Narayana, this is the justice of Mahadev, that they cannot see their devotees, the cows and the brahmanas and their devotees, suffering for dharma, because he has ensured that by dharma, people can acquire all the objects of their desire, and adharma will always bring you misery, misery, and misery alone. So this is the promise of Narayan. This is the promise of Mahadev. So it cannot be wrong. So it is only time and its essence that is acting on all of us right now, because we are living in Kali Yuga. But this shlok is applicable timelessly. It was applicable to Ravan, who appeared in the many two, I think two yugas, two Chatur Yuga before 24th Chatur Yuga, and it was applicable on Duryodhan, who appeared in this particular Chatur. It is applicable even now. Even it'll remain applicable at the end of this Manvantara, even the end of this Kalpa. So this is what we have to understand by this shlok, and I'll bring you two metaphors in this. It's a very interesting metaphor. Now in Ramayana, Vibhishan is a brother of Ravan. Vibhishan reasons with Ravan a lot. He advises Ravan to restore Sita to Sri Rama. He tells him that Sri Rama is not a mere mortal. You have to understand. He tells him that he was the only one, single handedly, he killed 14,000 ogres in Janasthana, including Khara and Dushana. So don't assume him as a mere mortal. And you have got the boon of not being killed by anyone except a mortal and monkeys. And he is a mortal, and he is the incarnation of Vishnu himself. Vibhishan told him time and time again, but he did not listen. In fact, he was castigated and he was thrown out of Lanka. He was insulted, and Vibhishan went out of Lanka. So, the going out of Lanka, going out of Vibhishan from Lanka, is a metaphor to be understood as Dharma leaving Lanka and going towards Sri Rama. Dharma goes where Sri Rama is. And then when Dharma left Lanka, Lanka was almost extinct, near its extinction. Ravan was almost counting his days. So this is what we have to understand. In the case of Mahabharata, there is one man called as Vidur, Mahatma Vidur. He was himself the incarnation of Yamadev. He also advised Dhritarashtra, he also advised Duryodhan, Karna, Shakmuni, many of them. But nobody listened to him. They all were bloating with pride and boasting about their past success, that we could actually, the Pandavas are only 5, we are 100, and we can easily kill them. But nobody listened to Vidur, that Arjun and Shri Krishna are Nar and Narayana himself. They have incarnated. Don't take them as mere mortals. Nobody listened to them, and Vidur walked out of Hastinapur before the war. Now, walking out of Vidur from Hastinapur is seen as Dharma leaving Hastinapur, and Hastinapur means Duryodhan was almost extinct. And Vidur went on a 1 year pilgrimage to sacred Tirth and sacred rivers, and then he came back, and everything was finished by then. So these two metaphors tell us that when Dharma leaves us, we are almost done. We have to count our days. So we have to be prudent enough to employ Dharma, to utilize Dharma as means for all our objects, and we have to employ the means of Dharma, the injunctions of Dharma as our karma itself, so that when we get success, that success is permanent, that success stays for generations to come. So this is what we all want. We don't want success like Ravan, like Duryodhan, that our lineage will be wiped out. We want our lineage to stay forever and ever. This is what we must all have a desire for. And Dharma is the only means that grants us that wish, grants us our wish that our lineage will go on, like Prahlad's lineage is so long. Now we can take the example of Hiranyakshapu also, but Hiranyakshapu was killed, but he was not, his soul acquired a larger dominion. He went on to Vaikuntha because his son Prahlad was Bhakti himself. He was the personification of Bhakti. So Bhakti can save adharma, but Duryodhan and Ravan did not have Bhakti in their life. So this is what we have to understand by this particular shlok and its applicability. So the applicability of this shlok is timeless. It was timeless. It was applicable to Ravan, Duryodhan, and even
Right now it is applicable and it will remain applicable until the end of this kalpa itself. ये जो श्लोक मैंने लिया है वो मनुस्मृति से लिया है, वो बहुत सुंदर श्लोक है और उसमें यही है कि अगर कोई मनुष्य थोड़े अधर्म के माध्यम से कुछ प्राप्त करता है तो वो अधर्म के माध्यम से थोड़े समय तक वो बहुत ही समृद्धि प्राप्त करता है, थोड़े समय तक वो अपने भोगों को, बहुत भोग जो उसने जमा किए हैं तो भोगों को भोगता है और थोड़े समय के लिए अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर लेता है, मगर अंत में उसका मूल ही नष्ट हो जाता है। मूल यहाँ पर ये समझा जाना चाहिए कि उसका वंश ही नष्ट हो जाता है। तो अगर हम दुर्योधन का एक एग्जाम्पल ले, हम रावण का एग्जाम्पल ले, श्री राम ने रावण को चुनौती भी दी थी, उनको एक अवसर दिया था कि आप मुझे सीता को वापस लौटा दीजिए तो मैं आप पर युद्ध नहीं करूंगा, आक्रमण नहीं करूंगा, मगर रावण नहीं माने और वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए, मगर उनका मूल ही नष्ट हो गया, उनका पूरा वंश, उनका कोई पुत्र बचा ही नहीं। तो रावण का पूरा वंश ही इस धरती से मिट ही गया। तो ये होता है मूल का नष्ट होना, अधर्म का अंत यही होता है कि उसका पूरा मूल ही नष्ट हो जाता है। और ये हम आपको बहुत ही ध्यान रखना है, हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं कि हमारा मूल ही नष्ट हो जाए। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं दुर्योधन में। दुर्योधन ने भी पांडव और श्री कृष्ण के साथ में युद्ध किया। पांडव और श्री कृष्ण को हम एक धर्म का प्रतीक देख सकते हैं, तो वो धर्म के सामने ही लड़ रहा था। तो दुर्योधन का भी समग्र मूल ही नष्ट हो गया क्योंकि उसके कोई पुत्र जीवित नहीं रहे थे, उसका पूरा वंश दुर्योधन का इस पृथ्वी से ही विलुप्त हो गया। सो यही नतीजा होता है कि अगर कोई अधर्म से कुछ भी प्राप्त करे उसका अंत तो यही होता है। और अगर हम दोनों की हम समृद्धि की बात करें तो रावण ने बहुत सारी ऐसी कन्याओं को चुरा के लेके आया, किडनैप करके लेके आया, बहुत गंधर्व विद्याधर राजाओं की, ब्राह्मणों की, एवं देवताओं की भी कन्याओं को लेके आते थे और उनसे विवाह कर लेते थे जबरदस्ती, उनको नहीं चाहिए तो। और बहुत सारी स्त्री ऐसी थी कि उनको रावण से ही विवाह करना था, तो ऐसी उनकी ख्याति भी थी कि वो बहुत ही शक्तिशाली थे, तो बहुत स्त्रियों को वो लुभाने लगे थे। तो वो बहुत स्त्री उन्होंने अपने स्वयं से उनको अपना वर चुन लिया। तो वाल्मीकि रामायण में आया है कि उनको उनके लगभग 1000 से भी अधिक पत्नियां थी, लगभग 1000 थी, और उसमें से थोड़ी जो थी वो उनको यहाँ से किडनैप करके लेके आए थे। तो उनको लेके आया, फिर उनसे विवाह किया, फिर उनको उनके साथ जीवन व्यतीत किया, उनको भोगा, और जो भोग सामग्री थी लंका में उनको भी उसने बहुत आनंद उठाया बहुत थोड़े समय तक। और फिर शत्रुओं को भी जीता उन्होंने, चारों दिक्पाल लोकपाल को भी जीत लिया, इंद्रदेव, यमदेव, वरुण देव और कुबेर, चारों को हरा दिया। इंद्रदेव को तो बंदी बना के लेके आए थे, फिर उनको छोड़ दिया। तो ऐसा उनका सामर्थ्य था, चारों को जीत लिया। और अंत में हमें देखने को मिलता है कि क्या हुआ कि वह उनका मूल ही नष्ट हो गया। तो ये जो श्लोक है वह रावण पे पूरी तरह असरदार हुआ, असर उसने पूरी तरह से किया। तो ये श्लोक का जो अगर आपको क्रियान्वित चरितार्थ होते हुए देखना है तो रावण का जीवन देख ले और दुर्योधन का जीवन देख ले, तो ये श्लोक बराबर उन पर लागू पड़ता है। उन्होंने अधर्म से ही सब कुछ भोगा और अंत में उनका मूल ही नष्ट हो गया। दुर्योधन भी ऐसा ही था, बहुत ही अधर्मी था वह स्वयं, मगर वह मानते थे कि मैं धर्म को जानता हूँ, मैंने धर्म सीखा है, मुझे पता है धर्म की शक्ति बहुत है, मगर मैं स्वयं धर्म का पालन नहीं कर सकता हूँ, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये इतना तो दुर्योधन में अच्छा था कि वह अपने आप से झूठ नहीं बोलते थे और औरों से भी झूठ नहीं बोलते थे। आजकल के लोग तो अपने आप से ही झूठ बोलते हैं, तो दुर्योधन से भी अधिक वो खतरनाक साबित होते हैं। दुर्योधन तो अपने आप से झूठ नहीं बोलते थे और दूसरों को भी कहते थे कि मुझे धर्म पता है मगर मैं धर्म का पालन मैं नहीं कर सकता। तो ये उनमें अच्छाई एक थी। मगर उन्होंने जब पांडव जब 13 साल वनवास भोग रहे थे, बहुत ही दुख में जी रहे थे, कंदमूल पे जी रहे थे, तभी दुर्योधन की बहुत ही समृद्धि हुई। दुर्योधन ने हस्तिनापुर में बहुत भोग भोगे, इंद्रप्रस्थ को भी उन्होंने संभाला, और उसी उसी समय में कर्ण ने बहुत सारे छोटे-छोटे राज्य को हरा दिया और छोटे राज्य भी हस्तिनापुर के अंदर आ गए और वो उनको टैक्सेस देने लगे, कर देने लगे। तो उनका जो समृद्धि है उनकी बढ़ गई थी 13 वर्षों में दुर्योधन की, क्योंकि उनको पता था कदाचित 13 वर्ष के बाद अगर युद्ध हो तो मुझे अपनी सेना का विस्तार करना होगा। तो वो बहुत ही ऐसे चतुर थे और धीरे-धीरे अपनी सेना बढ़ा रहे थे। मगर अंत में क्या हुआ? अंत में उनका मूल ही नष्ट हो गया। तो ये जो है हमें ये श्लोक
इस पर भी असरदार था पूरी तरह से दुर्योधन पर। तो रावण और राम आए थे 24वें चतुर्युग में, और दुर्योधन थे इस 28वें चतुर्युग में, और यही कलयुग में थे। तो ये श्लोक तभी भी असरदार था, आज भी असरदार है, और तभी भी आज के बाद भी रहेगा। तो ये श्लोक है, इट इज टाइमलेस, ये सनातन ही असरदार रहने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र का मूल धर्म है, धर्म का मूल वेद है, वेद का मूल सत्य है, सत्य स्वयं भगवान विष्णु है, सत्य स्वयं शिव सुंदर है। तो ये इन दोनों से ही उत्पत्ति हुई है सभी की। तो ये दोनों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इनइफेक्टिव हो, इसका कोई असर ही ना हो, ऐसा समय ही नहीं होगा। ये हमारी दोष में, हमारी दृष्टि में दोष है, इसलिए हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये दोनों की जो कथा है, ये श्लोक से हमें पता चलती है कि हम सभी को ऐसा लगना चाहिए, हमको ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि हमको जो भी हमारे गंतव्य तक पहुंचना है, हमारी इच्छाएं हैं, तो उसको जो साधन है, तो साधन को साध्य करने के लिए, जो साध्य है जो हमारे, तो उसको साधन, हमारे धर्म ही हमारा साधन होना चाहिए, अधर्म नहीं। अधर्म से अगर आपको मिल भी रहा है कुछ भी फटक से, बहुत जल्दी मिल रहा है, तो भी हमें बहुत ही संयम पालना है, और हमें धर्म का आलंबन ही लेकर हमारे साध्य तक पहुंचना है। अगर हम अधर्म से साध्य तक पहुंच भी गए, बहुत जल्दी भी पहुंच गए, धर्म से टाइम लग रहा है, अधर्म से बहुत जल्दी आ रहा है, मगर उसका अंत जो है वह हमारे आपके लिए अच्छा नहीं होगा, फिर आगे जाके दुख भोगना, उससे अच्छा धर्म का ही आलम्बन ले और उसी के माध्यम से जिए, तो आगे हमें सुख ही प्राप्त होगा। आगे भी हम आगे का सुख हम अश्योर कर लेते हैं, हम जैसे इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो हम इंश्योर और अश्योर कर लेते हैं कि आगे भी हमारे जीवन में सुख ही होगा, क्योंकि हमने धर्म का पालन किया है। अधर्म से हमने कुछ प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसा डर भी नहीं होगा कि ये जो आया है वो चला भी जाएगा। और धर्म से आया हुआ जो भी धन है, वह हमारे मन में सुमति लेके आएगा, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार ही उत्पन्न होंगे। और जो अधर्म से आया हुआ जो धन है, वह कुमति ही डालेगा, तो वह अंदर अंदर ऐसी ही निर्णय हम लेंगे कि हम ही हमारा विनाश कर देंगे। तो ये बहुत ही, ये भगवान की लीला है, इसको हमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखना है। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल ले हिरण्याकशपु का, तो वह एक दैत्य थे, दीति के पुत्र थे, कश्यप के और दीति के पुत्र थे, देवताओं के शत्रु थे। तो उनका जो पुत्र था वो प्रहलाद था। अभी हिरण्याकशपु को मारा नरसिंह भगवान ने, मगर नरसिंह भगवान को उत्पन्न किसने किया? प्रहलाद ने, स्वयं ने उत्पन्न किया, उनके पुत्र ने ही उत्पन्न किया है। तो उनका जो है, उनका मूल नष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो स्वयं भक्ति का एक स्वरूप है। स्वयं देव गुरु बृहस्पति इंद्र देव को ऐसी आज्ञा करते हैं कि अगर आपको भक्ति सीखनी है तो आप प्रहलाद के पास जाइए। आज भी प्रहलाद जीवित है सूतल में, उनके पौत्र बलि के साथ में, और बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनने वाले हैं। प्रहलाद तो अभी भी जीवित है, प्रहलाद तो बहुत ही पहले आए थे, तो अभी तक जीवित है। तो आपको और हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जब कृपा करते हैं तो कितनी कृपा करते हैं, और जब भी अधर्म आता है उसका नाश तो चुटकियों में हो जाता है। और अधर्म से प्राप्त किया हुआ जो भी सुख है वह तो थोड़े समय रहता है और फिर अंत हो जाता है, मगर धर्म में भले थोड़ी कठिनाई हो, आगे कष्ट ही हो, जैसे राम भगवान के जीवन में 14 वर्ष का वनवास था, वही सबसे बड़ा कष्ट था, और उसी को ही वाल्मीकि रामायण कहते हैं। बाकी राम राज्य का वर्णन तो 2 पन्ने में ही है, 2 या 3 पन्ने में, और कुछ है ही नहीं। भले वो 10,100 वर्ष का राम राज्य था, वो जिए थे, मगर जो 14 वर्षों का जो कष्ट भोगा, वही उसमें ही उनका चरित्र उठा, उनके उसमें ही उनकी महत्वता बढ़ गई। तो ये हमें देखना है कि धर्म से भले थोड़ा सा हमें कष्ट हो, 14 वर्ष का वनवास हम समझ ले, या 28 वर्ष का भी हो, या 20 वर्ष का हो, मगर उसके बाद का जो जीवन है वो बहुत ही सुखमय होगा। तो हमें, आपके लिए, हम दोनों के लिए, हम सभी के लिए यही उचित है कि हम धर्म को ही अपना साधन बनाएं, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अधर्म से हम दूर ही रहे। और ये मेरी पुस्तक है रिसर्जेंट धर्म, ये अभी दिसंबर में पब्लिश हुई है, एंड दिस इज इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में है, और इसमें मैंने
यही हमारी जो प्रोक्लिविटीज है, हमारी वृत्ति है, हमारी जो इंद्रियां हैं, तो वो कैसे काम करती है, इंद्रियों को कैसे हमको नियंत्रण में रखना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुरुष कैसा होना चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए, विवाह की आवश्यकता क्यों है, संतान की आवश्यकता क्यों है, गुरु की आवश्यकता क्यों है, दंड नीति क्या है, फिर राजनीति क्या है, लॉ क्या है, फिर सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, काम क्रोध मोह लोभ मद, ये सब ईर्षा, ये सभी पे एक एक चैप्टर मैंने लिखे हैं। मतलब इसमें मैंने अगर मोह को हम ले ले तो मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि मोह का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अटैचमेंट, मोह कैसे उत्पन्न होता है, मोह का सदुपयोग कैसे हो, मोह को कभी त्यागना है और मोह से कैसा काम लेना है। वैसे ही मैंने क्रोध पर काम किया है, तो क्रोध को हमको कैसे हमारे उपयोग में लेना है और फिर हमको क्रोध को जाने देना है, तो क्रोध को हम पर कैसे हावी नहीं होने देना है, ये सभी मैंने वृतांत इसमें है। और इसकी लिंक्स मैं आपको कमेंट्स में मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर आप परचेस करना चाहें तो इसमें देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिव्यू द बुक, इसमें थोड़े से पेजेस आपको पढ़ने भी मिलेंगे जो पब्लिशर की वेबसाइट है उसमें। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मगर गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है यूट्यूब पर, उसको मैं अवश्य आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको फॉलो कीजिएगा, बिकॉज उसमें बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सचोट ज्ञान है, शास्त्र का डायरेक्ट ज्ञान आप तक आएगा। शास्त्र के सिवा उनके मुख से और कुछ निकलता नहीं है, और शास्त्र अगर निकलते हैं तो आप समझ लीजिए ऋषि की ही वाणी है, देवताओं की ही वाणी है, भगवान नारायण की ही वाणी है, क्योंकि शास्त्र स्वयं नारायण ही है। तो वही आपसे बात करेंगे, और वो अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका हमारा सभी का कल्याण निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।